Hello everyone, I hope you're doing well. Today, in this video session, we're going to see the remaining part of the extract onto the summit we reached the top. Onto the summit we reached the top is an informative lesson, and the narrator himself is narrating the incident or narrating the story that how they climbed Mount Everest. And here Tenzing Norgay, who was a Nepali Indian mountaineer, and he was also one of the two who reached the summit of the greatest mountain, that is Mount Everest. So without wasting the time, let's see the next part of the lesson. Onto the summit we reach the top. So here Tenzing Norgay told us that whatever the rope which connects them or which helps them to get united, so this rope was a symbol, and this symbol is of what? That this symbol, it tied us together. So this is the symbol of togetherness, this is the symbol of unity. उनके unity का एक क्या है, ये symbol है, and one could not move without the other. So with this rope, it's only possible to move together. दोनों एक दूसरे की मदद से ही ऊपर जा सकते हैं, यानी कोई भी एक इंसान यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकता. सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर रोप, जो उन्होंने एक दूसरे से क्या किए हुए, कनेक्ट किया हुआ है. ये जो रोप है, दैट इज द सिंबल ऑफ देयर यूनिटी. एंड ऑफ कोर्स वी वर नॉट टू इंडिविजुअल्स बट अ टीम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ टीम इन अवर लाइफ टू बी सक्सेसफुल इन अवर लाइफ. हम अगर हमारी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी एक टीम होनी चाहिए, because without team it's not possible. There is a lot of difference between group and team, because team's purpose, team's aim, team's intention is one. They were united and they were working together. And here also that Tenzing Norgay and Edmund Hillary, they both were working very hard and they were working together. And of course he said that this rope is a symbol of their unity. Remember that. So I have been asked many times who was first. When we were within reach of the summit, I did not think of who was going to be first. I am sure that Hillary was not thinking that. Climbing takes all your attention. You have many more important worries. So at that time, many times or many people asked the question to Tenzing Norgay that who was first, who reached Mount Everest for the first time. यानी पहली बार या पहला कदम उस समिट पे किसने रखा. बट दैट इज नॉट द मेजर कंसर्न फॉर देम, बिकॉज टू रीच दैट पर्टिकुलर प्लेस, टू रीच दिस समिट, दैट इज द प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर देम. उस वक्त हिलरी, एडमंड हिलरी और टेंसिंग नॉर्गे, वो दोनों भी इस बारे में नहीं सोच रहे थे कि पहले कौन. वो सिर्फ यही सोच रहे थे कि किस तरह से इन सारी वरीज को, इन सारे ऑब्स्टैकल्स को पार करके उस ऊंचाई तक वो कैसे पहुंच सके. सो दैट इज द प्राइम प्रायोरिटी फॉर देम. एंड ऑफ कोर्स दे हैव मेनी वरीज, मेनी मोर इंपॉर्टेंट वरीज दैट टाइम, एंड सो दे नीड टू पे अटेंशन टुवर्ड्स देयर क्लाइंबिंग. चढ़ाई करना या इस पे ही फोकस करना उनके लिए उस वक्त बहुत जरूरी था. व्हाट डज इट मैटर वेदर आई रीच द टॉप फर्स्ट और हिलरी, यानी उनके लिए कौन पहले पहुंचा, दैट इज वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन, दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर देम. यानी हिलरी पहले पहुंचा या फिर टेंसिंग नॉर्गे पहले पहुंचा, दिस इज नॉट द क्वेश्चन फॉर देम. आवर मेन थॉट वाज दैट बोथ ऑफ अस रीच द टॉप, यानी उनके लिए वो वहां पे पहुंचे, यही सबसे बड़ी बात थी. एंड ऑफ कोर्स दिस इज द ग्रेट थिंग व्हिच वाज हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड हिस्ट्री. सो वी हैड, our main thought was that both of us reached the top. We had to, one couldn't do it alone, because कोई भी एक ये काम नहीं कर सकता था. जो कुछ भी उन्होंने किया था, that is the collaborative work, that is the work which were united them. And of course कोई भी अकेला इंसान इसे कर नहीं पाता, ये उन्हें भी पता है. And due to that, this is not the biggest question for them. So वो उसके बारे में सोच भी नहीं रहे थे कि कौन पहले या कौन बाद में. So if there had been a difference of 1000 feet between us, so then one could make the claim that he was first. अगर उन दोनों में 1000 से भी या 1000 फीट से भी ज्यादा का अंतर होता तो हम समझ सकते थे कि
पहले कौन पहुंचा, लेकिन उनकी बात अलग थी। दे वर टाइड टुगेदर विथ जस्ट वन रोप। कभी वो तेनजिंग नॉर्गे के ऊपर था या कभी एडमंड हिलरी आगे जाता था। दे वर जस्ट एक्सचेंजिंग देयर प्लेसेस। सो दिस इज नॉट द क्वेश्चन फॉर देम, बट इवन देन ओनली द मैन बिहाइंड हिम कुड कंफर्म द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ देम। तो जो पीछे वाला है वही बता सकता है कि उन दोनों में कितना अंतर था। सो दैट इज नाउ वन ऑफ द कंट्रोवर्सी व्हिच वाज हैपेंड व्हेन दे रीच्ड द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। कि दुनिया भर में सिर्फ यही बात चल रही थी कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन पहुंचा, एडमंड हिलरी और तेनजिंग नॉर्गे। सो लेट्स सी हाउ दे हैंडल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। इस सिचुएशन को उन दोनों ने किस तरह से हैंडल किया, लेट्स सी। देन व्हेन वी रीच्ड काठमांडू, काठमांडू is the capital of Nepal, and of course when they reached the Kathmandu, we discovered that a controversy had arisen. We talked it over, Hillary, Colonel Hunt and I. So this controversy already arisen. यानी इस तरह की कंट्रोवर्सी के सबसे पहले कौन ऊपर पहुंचा, ये कंट्रोवर्सी पहले से शुरू हो गई थी। It means media is now very much concerned to this particular question कि सबसे पहले माउंट समिट पे या माउंट एवरेस्ट के समिट पे किसने पैर रखा। So they would like to announce this particular news. So they had discussed this matter together. कर्नल हंट जो कि इस एक्सपीडिशन के जो मेन थे वो कर्नल हंट थे, एंड ऑफ कोर्स नाउ हिलरी, एडमंड हिलरी, तेनजिंग नॉर्गे एंड कर्नल हंट, they were talking together and they discussed this particular matter. We agreed that all the talk was childish. It means now they concluded this particular thing. उन्हें लगा कि ये सारी बातें एक बच्चे जैसी हैं. This is all the childish talk the people are talking now, because this is not the biggest question for them. So we made a pact. Pact means a formal agreement between the individuals or parties. So now let's see that here they have made a pact. उन्होंने एक agreement किया जिसके तहत each of us signed it in the office of the Prime Minister of Nepal. So Prime Minister of Nepal के ऑफिस में उन्होंने जो पैक्ट है, उन्होंने जो एग्रीमेंट है वो साइन किया, तीनों ने भी। Each one signed his own statement. I have copy of Hillary's statement which I carry in my pocket. So after signing the agreement, after signing this particular statement, they had got this particular copy of each other. उन्हें एक दूसरे की कॉपी मिली। तो तेनजिंग नॉर्गे के पास एडमंड हिलरी की जो स्टेटमेंट थी उसकी एक कॉपी थी, उनके जेब में एक कॉपी थी। इट रीड्स, वो क्या थी, लेट्स सी दैट काठमांडू जून 22 1953। कब की बात है, जून 22 1953 की बात है। ऑन May 29th तेनजिंग शेरपा and I left our high camp on Mount Everest for our attempt on the summit. As we climbed upwards to the south summit, first one and then the other would take a turn at leading. So जब उन्होंने कैंप 9 से उनकी चढ़ाई शुरू की तो उस वक्त इन्होंने अपनी जो पोजीशन थी, कभी तेनजिंग शेरपा आगे था और कभी एडमंड हिलरी जो थे वो आगे थे। So it means remember this is the important thing they have written there, that this is the journey which indicates the togetherness, and of course without each other it's not possible for them to reach the Mount Everest. So first one and then the other would take a turn at leading. यानी कभी वो आगे था, कभी एडमंड हिलरी आगे था। So we crossed over the south summit and moved along the summit ridge. Ridge means a long narrow piece of raised land. तो धीरे धीरे चढ़ाई करते हुए वो आगे बढ़े और उन्होंने बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स का भी सामना किया। बहुत सारे नैरो पाथ थे, बहुत सारी फिसलने वाली राह थी, लेकिन उन्होंने सारे ऑब्स्टैकल्स पार करते हुए आगे बढ़े। एंड वी रीच्ड द समिट ऑलमोस्ट टुगेदर। सो व्हाट इज सेड, वी रीच्ड द समिट ऑलमोस्ट टुगेदर, यानी उन्होंने कहा कि हम दोनों करीब करीब एक साथ ही माउंट एवरेस्ट पे एक साथ ही ऊपर पहुंच गए। सो हियर दे हैड नॉट डिस्क्लोज्ड दिस पर्टिकुलर थिंग कि कौन पहले ऊपर पहुंचा। नो, दे सेड दैट वी रीच्ड देयर टुगेदर, दोनों भी एक साथ ऊपर चले गए। देन वी एम्ब्रेस्ड ईच अदर ओवरजॉयड एट आवर सक्सेस। उन्होंने एक दूसरे से, दे वर एम्ब्रेस्ड ईच अदर
and of course they were rejoiced this particular moment, they were celebrating this particular moment, and due to that they were embraced to each other. Then I took photograph of Tenzing holding aloft the flags of Great Britain, Nepal and the United Nations and India. So already we know it very well that Tenzing Norgay carried 4 flags, and these 4 flags are of Nepal, Great Britain, United Nations and India. ये जो 4 फ्लैग, 4 देशों के फ्लैग उन्होंने वहां पे लगाए, एंड दिस स्टेटमेंट वाज साइंड बाय एडमंड हिलरी. एंड देयर इज अनदर पेपर लाइक दिस इन इंग्लिश साइंड बाय मी. ऐसा ही एक स्टेटमेंट जो कि इंग्लिश में था, जो टेंसिंग शेरपा ने साइन किया हुआ था, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने एडमंड हिलरी को दिया था. एज द स्टेटमेंट सेज, हिलरी एंड आई embraced when we reached the top. We did as well as our bulky equipment would let us. It means of course this is a toughest journey for them. और इतना सारा सामान लेके उस जगह पे पहुंचना, उस समिट पे पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे कैसे वो लोग या वो दोनों वहां पे पहुंच गए. And I remembered saying to him, we have done it. यानी उसने कहा कि at last, उन्होंने कहा कि हमने एक कर दिखाया. इट मीन्स उनके बलबूते पे, उनके कॉन्फिडेंस पे उन्होंने एक कर दिखाया. एंड बट वी कुडंट हियर बिकॉज ऑफ कोर्स दैट टाइम वी हैड अवर ऑक्सीजन मास्क ऑन, क्योंकि उनके चेहरे पे उस वक्त ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था. तो वो क्या बोल रहे थे एक दूसरे को सुनाई नहीं दे रहा था, बट दे सेड यस वी डन इट. सो एट लास्ट दे रीच टुगेदर ऑन दिस समिट. सो द फर्स्ट थॉट, वहां पे पहुंचने के बाद में जो माइंड में पहला थॉट आया होगा वो कौन सा होगा? सो ही हैज narrated this particular thing to us. Let's see what was the first thought when they reached to the Mount Everest. My first thought on reaching the top was a sense of gratitude to God. यानी जब वो वहां पे पहुंचे तो पहला थॉट टेंसिंग नॉर्गे के माइंड में ये आया दैट वो कृतज्ञता अपने भगवान के लिए, अपने गॉड के लिए दर्शा रहा है. He is very happy now because he reached the summit of this Mount Everest, and of course he would like to say thank you to God that after having failed 6 times he had blessed me with fulfillment of this desire I had held so long. 6 बार फेल्योर आने के बाद में भी भगवान ने उसे या उसके गॉड ने उसको इतनी शक्ति दी कि वो इस मुकाम तक पहुंच सका. And of course this is a greatest moment for him, and of course he said thank you to the God. and 6 बार फेल होने के बाद में भी at last 7वीं बार उसे ये अपॉर्चुनिटी मिली, and of course now he became in the first 2 persons who reached at the top of this mountain, the summit of this Mount Everest. I placed on this summit the offerings to God. It means जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने गॉड के लिए कुछ ऑफर किया, और ये चीजें कौन कौन सी थी आपको ये याद रखना है. लेट्स सी दैट आई हैड कैरिड विथ मी, व्हाट द थिंग्स ही हैड कैरिड विथ हिम. लेट्स सी दैट दिस इज इन अकॉर्ड विथ माय रिलीजन. इट मींस अकॉर्डिंग टू हिज रिलीजन, ही बोथ हिज वाइफ एंड ही they were belongs to Buddhist. It means they are following the Buddhist ways, and I could not kneel because my clothes and equipments. That time he would like to kneel. वो अपने घुटनों पे बैठ के अपने भगवान से प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन वो घुटनों पे बैठ नहीं सकता because of his clothes and equipments. उनके पास जो सामान है, उनके उन्होंने जो पहना हुआ है, उस क्लोथ्स की वजह से वो नीचे बैठ नहीं सकते. But I offered a silent prayer in my heart. लेकिन मन ही मन उसने भगवान की प्रार्थना की. And of course he offered few things. The offerings were biscuits, candy and a little blue pencil. So टेंसिंग नॉर्गे ने 3 चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है. उन्होंने बिस्किट्स वहां पे रखे, कैंडी रखी, एंड लिटिल ब्लू पेंसिल वाज देयर. एक छोटी सी पेंसिल है ब्लू कलर की, वो भी उन्होंने उस जगह पे रख दी. माई यंगेस्ट डॉटर नीमा, द नेम ऑफ हिज यंगेस्ट डॉटर इज नीमा, who gave him that little pencil and had given me this pencil before I left home. जब वो घर से निकले तो उन्होंने या उनकी बेटी ने, जो उनकी छोटी सी बेटी है, सबसे छोटी नीमा नाम है उसका, तो उसने ये जो पेंसिल है
तो उनके हाथ में थमा दी और उसने कहा कि ये जो ऑफरिंग है, जब आप वहां पे पहुंच जाओगे उस समिट पे, तो ये मेरी तरफ से भगवान के लिए ऑफर कर दो. सो शी आस्क्ड मी टू पुट इट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन एज हर ऑफरिंग. सो ही डिड द सेम थिंग. Which are the three things he offered there? Biscuits, then candy, and a little blue pencil. So these three things he offered there. It was an ordinary blue pencil, not even a long one, but it was one of her prized possession. इस छोटी सी बच्चे ने उसका जो प्राइज में मिला हुआ जो पेंसिल है, छोटा सा, जो कि बड़ा भी नहीं है, लेकिन उसने अपने पापा को ये जो पेंसिल है वो दिया है और उसने कहा कि जब वहां पे आप पहुंच जाओगे तो उसे वहां पे ये मेरी तरफ से भगवान के पैरों में इसे ऑफर कर देना. सो दैट इज द ग्रेटेस्ट विश ऑफ दैट पर्टिकुलर इनोसेंट गर्ल whose name is Nima. So as I put it down, I pointed it out to Hillary. हिलरी ने भी ये देखा कि टेंसिंग नॉर्गे कुछ ऑफर कर रहे हैं. He gave me a big smile. उन्होंने एक बड़ी सी स्माइल उनको दी, showing that he understood. So he understood the feeling behind the offerings. So then I got out the flags which I had on a piece of string about 4 feet long. तब उन्होंने आगे जाके अपने पास उनके पास जो 4 फ्लैग थे वो बाहर निकाले. I fastened one end to my ice axe and Hillary took pictures as I held it up. जैसे ही उन्होंने वो बाहर निकाले, उन्होंने वो fastened one end to my ice axe, यानी उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी में उसे लगाया और उन्होंने उसे ऊंचा उठाया. तब हिलरी ने उनकी एक फोटोग्राफ ली with the flags of the 4 nations. And as I had to bring my ice axe down with me, I buried one end of the string in the ice on the top and the other snow on the slope down below. So when we left, they were lying flat against the summit. It was not possible on इतनी ऊंचाई पे वो उस फ्लैग्स को लगा नहीं सकते थे. तो उन्होंने क्या किया, एक रोप को उन्होंने क्या किया, वहां पे स्नो में गाड़ दिया और दूसरे रोप को नीचे छोड़ दिया, या दूसरी साइड को उन्होंने नीचे छोड़ दिया. And due to that, all the flags were lying flat against the summit. So of course they did it, and at last they will succeed in their attempt. It was very thirsty. तो उन्हें बहुत they were of course on this particular इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद में उन्हें बहुत प्यास लगी थी. They were thirsty. I took out a water tumbler for a drink, but found the water in the metal container had frozen, so I couldn't quench my thirst. उन्होंने अपनी वाटर बॉटल बाहर निकाली पानी पीने के लिए, लेकिन उन्होंने पाया कि उनका जो पानी है वो बर्फ बन चुका है. That was frozen, and of course due to that it couldn't quench his thirst, यानी वो अपनी प्यास नहीं बुझा सके. I ate some biscuits and offered some to Hillary. उन्होंने कुछ बिस्किट्स वहां पे खाए और कुछ हिलरी को भी ऑफर किए. So I was wearing a red scarf. So this is the story of red scarf. So red scarf की स्टोरी भी आपको याद रखनी है. So the story is like that. I was wearing a red scarf which my great friend Lambert, leader of the 1952 Swiss expedition, 1952 में एक बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने की कोशिश की थी with one of the person whose name is Lambert, who was from Swiss. Swiss means Switzerland. And of course he had given me last year. ये जो स्कार्फ था उनके फ्रेंड लैम्बर्ट ने उन्हें गिफ्ट किया था, और ये जो स्कार्फ था वो पहन के वो ऊपर तक उन्होंने चढ़ाई की थी. It was just a year ago. एक साल बीत गया था. On May 28th, when we were standing at 28,215 feet. जब वो इतनी ऊंचाई पे खड़े थे, 28,000 फीट का जो अंतर है उन्होंने क्रॉस कर लिया था. But that time they got the failure. So that he gave me the scarf. तो उन्होंने टेंसिंग नॉर्गे को ये जो स्कार्फ है वो दिया था. So here this particular gift is very much important for the Tenzing Norgay, because this is a great gift which was given by one of the great leader of the expedition. Okay, so I wore it all the way up to the mountain from Darjeeling से लेके इस summit तक उन्होंने इस scarf को पहने रखा था. So as I stood it at the top, I remember
him and felt that he was with me. जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा कि वो भी उनके साथ में है। लैम्बर्ट जो कि स्विस एक्सपीडिशन के लीडर थे, तो उन्हें लगा कि वो भी उनके साथ में वहां पे खड़े हैं। आई फेल्ट एब्सोल्युटली फिट एट द समिट, तो पूरी तरह से खुद को महफूज या फिट महसूस कर रहे थे। माई माइंड वॉज एब्सोल्युटली क्लियर बिकॉज नाउ दे हैड अचीव्ड देयर गोल। जब कोई अपना गोल अचीव करता है तो उसका मजा कुछ और ही होता है। सो आई डिडंट फील टायर्ड, I felt exhilarated. It was a very clear sensation. So this was a very different kind of the sensation for both the personalities. Exhilarated means they were extremely happy, they were excited and they were not feeling tired. इतनी ऊंचाई तक उन्होंने जितने भी सारी कोशिशें की, जितने भी सारे obstacles को पार किया, now they felt relaxed because now they reached at their goal. So below all the hills and mountains looked like gods and goddesses to me. जब वो ऊपर पहुंचे तो सारे जो गॉड्स हैं या सारे जो गॉडेसेस हैं तो उन्हें पर्वत में दिखाई देने लगे, या छोटे मोटे जितने भी सारे पर्वत या हिल्स वहां पे दिखाई दे रहे थे। So in all of these hills and mountains they found the gods and goddesses to me. The plains below looked like so many broken pieces of the map. So the plains में वहां पर से ऊपर से जो प्लेन एरिया था वो किस तरह से दिखाई दे रहा था? इट इज लाइक द ब्रोकन पीसेस ऑफ द मैप। तो मैप में जिस तरह से छोटे छोटे डॉट हैं उस तरह से वो सारी चीजें उन्हें दिखाई दे रही, मानो कि वो कोई मैप देख रहे हो ऐसा उन्हें लग रहा है। 2 or 3 people could stand there on the roof of the world if you cut ice. यानी माउंट एवरेस्ट का समिट कितना हो गया, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? लेट्स सी। उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है, वहां पर कितने लोग खड़े रह सकते हैं? सिर्फ 2 या 3 लोग, वो भी अगर आपने आइस कट किया तो। 20 or 30 feet below the top there was enough flat square for 2 people to sleep. यानी उससे नीचे 30 फीट तक आपको वहां पे फ्लैट स्क्वायर मिलेगा जिसके ऊपर 2 लोग आराम से सो सकते हैं। You could pitch one tent there. वहां पे आप टेंट भी लगा सकते हो। The summit is flat on one side and steep on the other. एक साइड से जो समिट है फ्लैट है, दूसरे साइड से स्टीप है, यानी वहां से फिसलने की पॉसिबिलिटी है। सो देयर इज स्नो ऑन द नॉर्दर्न साइड, रॉक्स ऑन द साउथ। रिमेंबर दिस, द स्नो टू द नॉर्दर्न साइड, नॉर्थ साइड में स्नो है, रॉक्स ऑन द साउथ, साउथ साइड में रॉक दिखाई देंगे, एंड ईस्ट एंड स्नोवी रॉक ऑन द वेस्ट, इसमें आपको स्नोवी रॉक दिखाई देंगे और वेस्ट में भी। We stayed on the top a little more than 15 minutes. वहां पे वो कितनी देर तक रुके? 15 minutes. And in this 15 minutes we were lucky that there was no gale. Gale means strong wind. क्योंकि इतनी ऊंचाई पे वहां पे 15 मिनट तक भी रुक पाना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहां पे वो कितनी देर तक रुके? 15 मिनट तक रुके। और it would have swept us off. अगर वहां पे जोरों से अगर हवा बह रही होगी, strong wind is there, so that time it is possibility that they were swept both of them away from that particular place. So my next thought was how to get down safely. अभी वो नीचे उतरने के बारे में सोच रहे थे। Remember one thing, ascending is the simple task if we compared with the descending. यानी चढ़ाई करना ये आसान होता है उतरने से। So now they are thinking about to get descent from that particular place. On the descent from the summit, I was walking behind Hillary. I was following him and holding the rope tightly. And my determination was to make sure he descended safely. उन्होंने एक दूसरे की मदद से, रोप की मदद से वो नीचे भी उतरने लगे, एक दूसरे को हेल्प करने लगे। एंड ऑफ कोर्स नाउ दे वर श्योर कि नीचे जाने वाला जो पहला इंसान है वो अच्छी तरह से सेफली नीचे जा सके और उसके बाद में ऊपर वाला नीचे आ सके। सो दे आर नाउ टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर। आई मस्ट से दैट द क्लाइंब डाउन वाज मोर डिफिकल्ट एंड डेंजरस देन द क्लाइंब अप। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू दिस पर्टिकुलर थिंग कि ऊपर चढ़ाई करना आसान होता है नीचे उतरने से। सो इफ यू स्लिप डाउन यू वुड गो इनटू द कैंगशुंग ग्लेशियर एंड देयर वुड बी नो ट्रेस लेफ्ट ऑफ यू। अगर गलती से भी वहां से फिसल गए तो आपका नामो निशान मिट जाएगा, यानी आपकी बॉडी भी किसी को नसीब नहीं होगी। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। कैंगशुंग ग्लेशियर इज द प्लेस जहां पे ये ग्लेशियर है माउंट एवरेस्ट एरिया में, तो शायद आपकी बॉडी वहां पे गिर सकती है। सो दैट वाज सो डेंजरस, मोर कॉशन नीडेड। तो यहाँ पे बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है।
So of course it took less time climbing down, but you needed more होशियार. होशियार, that is, it means you need to more cautious, and you need to be more speedy now. Okay, so when I reached camp 9, my first thought was, thank God we have been spared an accident, and if up to now there have been no accidents, I hope there will be none in future. So now they were happy कि without any kind of the accident they reached to the top of this mountain. तो at last उन्होंने कोई भी या किसी भी एक्सीडेंट न होते हुए वहां पे पहुंच सके. So they would like to thank the God. So I had always prayed to God and he had saved me. तो वो कहते हैं कि due to the blessings, due to the God, he reached there. तो भगवान को या उनके गॉड को वो क्या करते हैं, नमन करते हैं और कहते हैं कि उनकी वजह से ही आज वो वहां पे पहुंच सके. So he is very grateful to the God. And at last, let's see what happened. At Camp 9, Hillary and I were in no mood for any talking. जब वो 9th कैंप पे फिर से एक बार पहुंचे, so now they were not talking to each other. They were extremely happy. So we just attended to our own things. Now they were attending their own things. We stayed there about half an hour. तो आधे घंटे तक वहां पे कैंप 9 में रुके. That time we boiled some snow to make lemon water and drank it. तब उन्होंने लेमन वाटर, लेमन जूस उन्होंने रेडी किया और उन्होंने उसे पी लिया. When we left, we took only our sleeping bags and left everything else behind in the tent. तो जब वो वहां पे रुके तो सारा सामान उन्होंने वहां पर ही छोड़ दिया. उन्होंने अपने साथ सिर्फ उन्होंने स्लीपिंग बैग्स लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे नीचे उतरने के लिए. एंड नाउ दे लेफ्ट टुवर्ड्स देयर जर्नी, यानी वो अपने या नीचे उतरने की फिर से एक बार वो कोशिश करने लगे. एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम कैंप 9 टू कैंप 8 where we spent the night was an easier job. कैंप 9 से कैंप 8 तक जब वो पहुंचे तो उन्होंने एक रात वहां पे गुजारी. एंड दैट वाज वेरी गुड काइंड ऑफ द और इजियर काइंड ऑफ द जॉब फॉर देम. उन्हें वहां पे कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा. जस्ट अबव कैंप 8 where the others could see us, I raised my arm with my thumb up to see W.F. Noyce and W.G. Lowe saw us and their faces flushed with joy. जब वो कैंप 8 में पहुंचे तो उन्होंने अपने थंब ऊपर करके सबको ये बताया like this that we have done it, यानी हमने ये कर दिखाया. And they were now showing the thumbs to the Noyce and the Lowe. These are the personalities who were there that time. In this way I was able to tell them of our success. तो उन्होंने सारी जो उनके सक्सेस स्टोरी है तो उन्हें वो बताई. As we got nearer to camp 8, Lowe came to meet us. तो लोवे वहां पे चले गए. came up about 300 feet with tea and coffee. तो उनके लिए उन्होंने चाय और कॉफी बना के वो 300 फीट तक ऊपर चले गए उनकी मदद करने के लिए. एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ जॉयस मोमेंट फॉर देम, क्योंकि उससे पहले कोई भी इंसान माउंट एवरेस्ट के समिट पर नहीं पहुंच पाया था. सो अनदर 50 feet डाउन वी मेट नॉइस who brought us more tea. तो नॉइस ने भी उनके लिए टी बना के रखी थी. एंड दिस टी स्मेल्ड केरोसिन. तो उससे केरोसिन की बास आ रही थी. एंड apparently it had been made in a hurry and somehow some kerosene got into the welcome cup. शायद ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी में उन्होंने वो टी बनाई होगी. and due to that the kerosene or some of the drops of the kerosene fall down into the cup and due to that its taste was changed. और वो कैसी लग रही थी चाय? केरोसिन जैसी लग रही थी. but I thought since the gentleman had taken so much trouble to bring it, I was going to enjoy it whatever the smell. लेकिन उनके फ्रेंड ने उनके लिए इतनी मेहनत से वो चाय बनाई थी तो इसलिए उन्होंने सोचा कि टेस्ट भी कुछ भी हो लेकिन I will definitely drink that tea. Okay, so this is all about the experience of Tenzing Norgay when he was climbed Mount Everest, and this extract was taken from the archives of Times of India. So Times of India में ये जो आर्टिकल है वो छप के आया हुआ था और उसी से ये जो एक्सट्रैक्ट है वो लिया गया है. सो दिस इज द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर बिकॉज मैन्स डिटर्मिनेशन और ह्यूमन बीइंग्स एस्पिरेशंस, दिस एस्पिरेशन आर ऑलवेज हैव द प्राइम इंपॉर्टेंस. अपनी लाइफ में भी आप कुछ इस तरह का एस्पिरेशन रखो कि दुनिया उससे चकाचौंध हो जाए. सो हियर आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट
with a great message. Nothing is impossible in this particular world if you have the determination and perseverance and patience to achieve your goal. So try to be patient, try to be confident, and try to have full faith in yourself. So definitely you'll be successful in your life. So best of luck everyone. Thank you for watching my videos. If you liked my videos, subscribe my channel and don't forget to press bell icon. Thank you everyone. Stay home, stay safe, stay tuned.